So good morning all. Am I audible? Hello. Am I audible? The slides are visible. Can anybody confirm? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। So हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर आईआर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था and we have understood the theory and the principle behind that IR की IR में क्या-क्या principle and theory होती है. So we were discussing about we have stopped here at the Hooke's laws. So in today's class, we'll be studying from Hooke's laws and we'll be seeing some of the factors and more detail about the IR spectroscopy. So I hope all the students from 7th semester has understood the application of IR spectroscopy. Just for the revision, that IR spectroscopy is an analytical technique which is generally used for the qualitative purpose. It is not a quantitative one. It's a qualitative. Okay, ये quantitative नहीं है. ठीक है. And the major function of this IR in a pharmaceutical industry is to identify the functional group of any chemical, or you can say of a known API. Okay, for any API the IR will be distinguishable. It means that the two different API will not have the same IR. Okay, so with that note, we'll start your class with this Hooke's laws. As I have told you before, also Hooke's laws is applicable to IR spectroscope, whereas the Beer-Lambert law is for UV visible spectroscope. So, what is this Hooke's law? So Hooke's law is nothing but V is equal to 1 divided by 2 pi c, then square root of k by u. So where is the V is your wave number in centimeter inverse corresponding to the vibrational frequency of the bond. Then C is the speed of the light in centimeter inverse. K is the force constant, and whereas the mu is your reduced mass in cation inverse. So what is Hooke's law? We can also calculate an approximate value of stretching vibrational frequency of a bond by treating the two bond and their connecting bond to the first approximation as two first ball connected by a spring acting as a simple harmonic oscillation for which the Hooke's law may be applied. अभी आपने पीछे जितने भी स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग्स पढ़े थे उसके ऊपर ये हुक्स लॉस लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दो एटम्स जो ऐसे अगर ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में लगे हुए हैं और बीच में एक बॉन्ड है, तो हम उसका क्या पता करा सकते हैं, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम पता कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता कर सकते हैं. So according to the Hooke's laws, the stretching frequency is related to the mass of the atom and the force a measure of resistance of a bond to the stretching of a bond by a following equation. Generally Hooke's laws क्या होता है? The stretching frequency is related. जो stretching frequency है मतलब ये दो जो एटम्स हैं, अगर इसको अपन बहुत सिंपल भाषा में समझना चाहे, ये दो एटम जो हैं इन दोनों की आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर ये एक एटम है और एक एटम है, ये कितनी बार एक मिनट के अंदर कितनी बार ये ऑसिलेट करते हैं. ठीक है, अगर आपको वो फ्रीक्वेंसी पता करनी है, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर. जितना ज्यादा भारी मास रहेगा यहाँ पर दोनों एटम्स का, फ्रीक्वेंसी जितनी कम रहेगी, धीरे धीरे मूव करेगा. वहीं अगर हल्के मास के एटम्स है तो फास्ट मतलब इनकी स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग जो होगी फास्ट होगी अगर दो हल्के मॉलिक्यूल्स हैं. करेक्ट ना? अगर मैं ज्यादा दोनों भारी ले लूंगा तो क्या होगा, इसके जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी. एटॉमिक मास होता है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल से अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक मास बढ़ता है किसी भी कंपाउंड का. ठीक है ना? अगर एल्कलीन मेटल लेते हो तो एल्कनी में सोडियम सबसे हल्का है एटॉमिक मास में, और फिर नीचे आते जाओगे तो वो भारी होता चला जाएगा. वहीं हेलोजन के अंदर सबसे हल्का कौन सा है? फ्लोरीन के बाद. फिर नीचे आप नीचे जाते हो क्लोरीन से होते हुए ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन सबसे ज्यादा हैवी एटम है. तो अगर आपने दोनों आयोडीन एटम लिए हैं तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्योंकि भारी एटम है, तो बॉन्ड जो है उतनी तेजी से स्ट्रेच नहीं कर पाएगा जब आईआर रेडिएशन इसमें फॉल करेगा. Whereas आपने फ्लोरीन ले रहे हैं, फ्लोरीन जो है हल्का एटम है कंपेयर टू द आयोडीन. इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी मोर. तो हुक्स लॉ क्या कहता है?
हुक लॉ क्या कहते हैं भैया कि द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द मास ऑफ एन एटम एंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 एक तरह का एवरेज निकाला जा रहा है यहाँ पर। Got it now? Hooke's laws क्या होता है? I'll just show you one more. कल जो हम लोगों ने stretching bending देखा था, so I just found one very interesting animation. I just want to show you guys. I hope you can see this particular screen on this particular page on your screen. Can anybody confirm? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes or no? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अब अगर अपन इसको देखें, इस पर्टिकुलरली एनिमेशन को देखें तो इसमें बता रखा है, देखो मैंने कल आपको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के बारे में बताया था कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में देखो अगर ये दो एटम्स हैं, देखो दोनों अंदर बाहर मतलब कहते हैं ना, इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट जो है सेम है इन दोनों का, दोनों एटम का एक दूसरे के रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो दोनों जो एटम है ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है ना, देखो अंदर मतलब स्ट्रेच हो रहा है देन रिलैक्स हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है देन रिलैक्स हो रहा है, तो दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर है। इन दोनों एटम को देखो आप लोग, तो ये दोनों एटम दोनों अंदर आ रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं, दोनों अंदर आ रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं। तब कब होता है ये, जब आईआर रेडिएशन इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो ये ऐसे बॉन्ड जो क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एटम्स लेवल पे तो यूवी में होता है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, कल भी मैंने एम्फेसाइज किया था आईआर जो होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होता है इस पे। वहीं एसिमेट्रिकल सिंथेटिक में देखो, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, इफ यू सी द कर्सर, मैं जहां कर्सर मूव कर रहा हूं, देखो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों का सेम, दोनों एटम का सेम इनवर्ट एंड आउटवर्ड मूवमेंट रहता है, तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब एक आपने देखा था सिजेरियन, अब सिजेरियन देखो किस तरह से एटम जो है सीजर की तरह चल रहा है, अगर इसको केची समझो आप, तो केची की तरह काम कर रहा है ना, देखो जैसे अंदर बाहर, तो केची की तरह काम कर रहा है। रॉकिंग के अंदर मैंने बताया था रॉक करता है, जैसे होता है ना, रॉकिंग की तरह चल रहा है। रॉकिंग चेयर्स होती है ना, घर में देखा होगा बुजुर्ग लोग जो बैठते हैं, जिसको अपन रॉकिंग चेयर बोलते हैं, वो कैसे आगे पीछे झूलती रहते हैं, देखा होगा बुजुर्ग जो घर में ओल्ड पीपल्स होते हैं, तो वो रॉकिंग चेयर पे से झूला झूलते रहते हैं, तो ये रॉकिंग चेयर की तरह काम करता है। फिर आता है वैगिंग। वैगिंग के अंदर क्या होता है, दोनों इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में दोनों सेम मूव करते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। एंड ट्विस्टिंग के अंदर एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या था ये, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे एक एनिमेशन मिला, तो मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा कि किस तरह से एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है, सीजर्स सिजेरियन मूवमेंट में, या फिर रॉकिंग देन द वैगिंग एंड द ट्विस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आई होप एवरीबॉडी फ्रॉम द 7th semester has understood this one. Okay, shall we proceed now? Okay, तो हुक्स लॉज आपको मैंने बताया क्या काम करता है। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल समरी के ऊपर। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होता है। सिमेट्रिकल में दोनों बाहर एक साथ जाएंगे, अगर ये कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ बाहर जाएंगे, एक साथ अंदर आएंगे, तो उसको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलेंगे। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक बाहर जाता है एक हाइड्रोजन, एक अंदर आता है, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, ऐसे एसिमेट्रिकल होता है। बेंडिंग एंड सिजरिंग के अंदर क्या होता है, केची की तरह काम करता है। देन रॉकिंग कैसे होता है, रॉकिंग के अंदर मैंने बताया था किस तरह से ये मूव करता है। देन ट्विस्टिंग के अंदर प्लस माइनस जो दिखा रहा है, ट्विस्टिंग के अंदर आउट ऑफ द प्लेन एंड इनवर्ट द प्लेन चल रहे हैं। एंड वैगिंग जो होता है, वैगिंग के अंदर दोनों सेम साइड में, दोनों एक साथ बैक करते हैं। जैसे डॉग की जैसे किस तरह से टेल जो होती है बैक करती है ना, इसको बोलते हैं वैगिंग होना, जैसे पूंछ हिला रहा है, वैसे सेम डायरेक्शन के अंदर, इनवर्ट आउटवर्ड प्लेन, इनवर्ट एंड आउटवर्ड प्लेन। ओके, अब बात करते हैं नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस के। कौन कौन से नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस है, फनी रेजोनेंस से आता है, उसके अंदर ओवरटोन्स आता है, एंड कॉम्बिनेशन टोन्स की बात करते हैं।
फनी रेजोनेंस जनरली कार्बन डाइऑक्साइड दिखाते क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड द ओवरटोन और द कॉम्बिनेशन टोन को फनी रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, वेयर इज व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन टोन्स, weak bonds that appears occasionally at a frequency that are sum or the difference of two or more fundamental bonds. And the overtone, these are observed at the twice the frequency of the strong. Example is your carbonyl compound. Now we'll be studying about some of the factors which are influencing the absorption of IR radiation. ठीक है, कौन से factors हैं जो IR radiation को affect करते हैं, that we'll be studying now. तो first is your symmetry. कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर सिमेट्री है तो वो आईआर रेडिएशन का इनएक्टिव रहता है। सिमेट्रिक कंपाउंड डज नॉट पोजेस डाइपोल मोमेंट एंड आर आईआर इनएक्टिव। हमेशा याद रखना, जैसे ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या सिमेट्री है। सिमेट्री होने के कारण क्या होता है, आईआर रेडिएशन का ये इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी आपको सिमेट्री दिखती है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिमेट्री समझा रहे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री याद करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो वो आईआर इनएक्टिव रहता है। देन आता है कपलिंग। There are so many factors which causes coupling vibration in the IR, and it will influence the intensity and the shape of the absorption band. Example, normally the band due to the carbon double bond is around 1650 centimeter inverse, but due to mechanical coupling of 2 carbon double bond system in an alene, give 2 band at 1960 and 1970. ठीक है, कपलिंग इफेक्ट आता है। कपलिंग इफेक्ट क्या होता है, कपलिंग इफेक्ट से होता क्या है, जो हमारा बैंड आता है उसकी शिफ्टिंग होती है। ठीक है ना, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कपलिंग इफेक्ट है इज अराउंड, जो कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक आता है वो 1650 के बाद में आता है, लेकिन जब मैकेनिकल कपलिंग होती है किसी कंपाउंड के अंदर तो हमको 2 पीक मिलते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर आता है फनी रेजोनेंस। द फनी रेजोनेंस रिजल्ट्स इन एन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ the band. Example, overtone of carbon hydrogen deformation mode at 1400 centimeter inverse is always in funny resonance with the stretch of the same bond at 2800 centimeter inverse. Now the fourth one is your hydrogen bond. Hydrogen bond बहुत बड़ा फैक्टर है जो आईआर स्पेक्ट्रम में चेंजेस ला सकता है। अगर आपको कंपाउंड के केमिस्ट्री के बारे में पता है और आपको पता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इंटर या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसके कारण आईआर के जो पोजीशंस बैंड होते हैं उसमें शिफ्ट आती है। इट कैन चेंज द शेप एंड द पोजीशन ऑफ एन आईआर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, शेप एंड द पोजीशन ऑफ आईआर बैंड को चेंज कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्ट्रॉन्गर द हायर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा केमिकल एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, स्ट्रॉन्गर विल बी द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट। कौन से तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल ब्रॉडबैंड्स एंड द इंट्रा मॉलिक्यूल। इंटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक कंपाउंड के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंट्रा के अंदर क्या होता है, एक का दूसरे से होता है। ठीक है, एग्जांपल 1 प्रोपेनॉल के अंदर अगर इंटर हो रहा है, मतलब इंट्रा 2 प्रोपेनॉल के बीच में हो रहा है तो 3650 में मिलेगा। और अगर इंटर है, इंटर स्टेट्स होता है ना, तो अगर उसको 3350। देखो एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कितना बड़ा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जो 1 प्रोपेनॉल के अंदर OH ग्रुप है उसकी पोजीशंस 300 सेंटीमीटर इनवर्स शिफ्ट हो जाती है, 300 शिफ्ट हो रही है, तो मतलब 3650 पे तो दूसरा कंपाउंड दिखने लग जाता है। तो आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि हाँ, अगर मान लो मेरे को 3650 पे दिख रहा है, इट मींस वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल इंटरेक्शन हुआ है या तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट आया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bond exists when a hydrogen bond is bound to 2 or more other atom. हाइड्रोजन क्या होता है बेचारा, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है। अगर उसके आसपास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन वाले जो ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, उससे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। नॉट एन ऑर्डिनरी कोवैलेंट बॉन्ड सिंस द हाइड्रोजन एटम
has only one orbital to engage in the covalent bond. इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, उस एक ऑर्बिटल में 1s के अंदर एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो कंपाउंड की केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। द टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ए टू very negative electronegative atom usually in a linear fashion, not in a symmetrical। अगर मान लो हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है और आसपास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, दोनों अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। देखा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उससे क्या होता है डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसके और डाइपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ आईआर बैंड्स दिखाई देती हैं। The s orbital of the protein can effectively overlap with the p or the pi orbital of the acceptor। तो ये क्या होता है, इसका जो s ऑर्बिटल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये कपल कर जाता है, ये ओवरलैप कर जाता है पाई ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले रहे हो तो उसके किसी भी पाई जो उसका जो पाई ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन के साथ कपल कर जाता है, उससे इंटर या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ऑल दीज आर बेसिक्स ओनली। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्टर द फोर्स कांस्टेंट ऑफ बोथ ग्रुप्स, that is the hydrogen that is X is nothing but your electronegative compound। So excess stretching band towards to the lower frequency, the stretching frequency of the acceptor group is also reduced but to a lesser degree। The excess bending vibration usually shift to the shorter wavelength। The change in the frequency between the free OH absorbed and the hydrogen bonded absorption is a measure of the strength of the hydrogen bond। Okay। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद फिर इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सच एज इलेक्ट्रिक एंड द मेसोमेरिक एंड द फील्ड इफेक्ट मे कॉज शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू द चेंज इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक जो इफेक्ट्स होते हैं उसके कारण जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड जो बनते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, एसीटोन का जो बैंड बनता है वो 1715 पे सेंटीमीटर बस मिलता है, क्लोरो एसीटोन के अंदर 1725 पे मिलता है। देखो यहाँ तो सिंपल सा एसीटोन है, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन ग्रुप लग गया तो देखो शिफ्टिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो कहाँ पर दोनों बगल बगल में आ गए। वही मीजोमेरिक एसिटोफिनॉन जो है वो 1693 पे दिखाता है, या पैरा अमाइनो एसिटोफिनॉन जो है 1677 पे दिखाता है। ठीक है, फिर आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिफरेंस इन द बॉन्ड एंगल कैन आल्सो लीड टू चेंज इन द एब्जॉर्प्शन बैंड। बॉन्ड एंगल अगर चेंज होता है तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन बैंड भी चेंज होता है। जैसे जैसे रिंग का स्ट्रेन बढ़ता है, देखो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 मॉलिक्यूल वाला मतलब 3 कार्बन वाली है, ट्रायंगल में बना हुआ है, इसका जो स्ट्रेन है ज्यादा है तो इसको इसका जो बैंड आएगा 1815 पे आएगा। यहाँ पे बॉन्ड से थोड़ा कम, बॉन्ड स्ट्रेन कम है या रिंग स्ट्रेन कम है तो 1780 पे आएगा। यहाँ पर ये 5 मेंबर वाला है तो इसके अंदर 1745 पे आएगा, यहाँ पे 1715 पे आएगा। और यहाँ पर देखो अगर अपन दो चीजें देखे जाए तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड और लीनियर कंपाउंड के बीच में डिफरेंस दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये अभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर लीनियर फॉर्म के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक क्लोज रिंग में ये लगा हुआ है। तो दोनों का देखो रिंग स्ट्रेन के कारण दोनों का पीक जो है सेम पोजीशन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि जो केमिस्ट्री है, जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है हायर स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने के लिए। सेम विल बी यूज फॉर द एनएमआर एंड द मास आल्सो। ये आईआर जो है, आईआर आती है या आपकी एनएमआर है, मास की पूरी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, आपको ये सब पता है कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है, बॉन्ड एंगल्स कैसे चेंजेस होते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे होती है, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के कंसेप्ट सारे पता है, इंडक्टिव इफेक्ट पता है, रेजोनेंस के बारे में पता है, एरोमेटिसिटी के बारे में पता है, या फिर आपको हक्कल मतलब जो भी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है आपको पता है, तो उसको यूज करके ही हम इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर सकते हैं उसको ढंग से इंटरप्रिटेट करने के अंदर। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द फैक्टर अफेक्टिंग द दिस वन। ओके, अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट रीजन से। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, अगर मैं इसको पहले समझाना चाहूँ, फिंगरप्रिंट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, आईआर जो होता है हर एक कंपाउंड के लिए
एक यूनिक रहता है, ठीक है, क्या रहता है, यूनिक रहता है। जैसे पैरासिटामोल और डाइक्लोफेनेक है, तो पैरासिटामोल का जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो बिल्कुल यूनिक रहेगा, वहीं डाइक्लोफेनेक का जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो भी बहुत यूनिक रहेगा, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीजन दिखता कहाँ है, अगर मैं इसको आपको एक आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो ये 1500 का जो बैंड है, इससे पहले के जो पीक्स होते हैं 1500 लेके 500, ठीक है, 1500 से लेके 400, ये जो बैंड बीच में बनते हैं ये एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है, और ये फिंगरप्रिंट रीजन हर एक कंपाउंड का यूनिक रहता है। किसी भी दो कंपाउंड का फिंगरप्रिंट रीजन सेम नहीं होता, जैसे कि दो इंसानों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही दो एपीआई, दो केमिकल कंपाउंड का फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी सेम नहीं होगा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। तो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से पहले का जो ग्राफ होता है उसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस फिंगरप्रिंट रीजन? इन द आईआर द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स is rich in many absorption band and the region is known as fingerprint region. Here the number of banding vibration are usually more than the number of stretching vibration. यहाँ पर banding vibration ज़्यादा मिलते हैं compared to stretching vibration से। In this reason, small difference in the structure and the constituent of the molecule result in the significant change in the absorption rate. अगर मान लो आपने कोई केमिकल सिंथेसिस किया है, तो अगर आप इसको सिंथेसिस करने के बाद आपने सपोज करो सिंपल सा आपने एक मिथाइल ग्रुप ऐड कराया है, तो मिथाइल ग्रुप ऐड कराने के कारण के का भी आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। कोई आपने कोई भी कंपाउंड लिया, पैरासिटामोल लिया, उसमें एक आपने मिथिलीन ग्रुप लिया, कोई एक क्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो उसको अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि हाँ ये ऐड हुआ है नहीं हुआ, एक आईआर निकाल के देखो, आईआर से पता चल जाएगा कि हाँ ये हुआ है। आप लैब्स के अंदर कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि आपने वो केमिकल सिंथेसिस हुआ है नहीं हुआ है? जब सिंथेटिक केमिस्ट्री को एक बच्चा कर रहा होता है तो वो आईआर की हेल्प लेता है, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? So in this reason, small difference in the structure and the constitution of the molecule result in the significant change in the absorption band. Many compounds shows unique absorption band in this region and which is very useful for the identification of जितने भी APIs हैं, मोनोग्राफ्स के अंदर जितने भी APIs मेंशन किए गए हैं, इन सबके यूनिक एब्जॉर्प्शन बैंड दिखते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ओके। अगर कोई भी आप FDR उठाते हो उसके अंदर 1500 सेंटीमीटर इंटर से पहले का अगर आप देख रहे हो तो सबकी यूनिक आपको आईआर बैंड्स मिलेंगे। अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो ये क्या है, एक अल्कोहल, ये दोनों देखो अल्कोहल है, ये एक लीनियर एल्कोप्रोपेनॉल है, मिथाइल मिथाइल प्रॉप, तो ये प्रोपेनॉल है और ये आइसोप्रोपेनॉल है। तो देखो दोनों का डिस्टिंग्विश मिला, केमिस्ट्री चेंज हुई, केमिस्ट्री चेंज होने से फिंगरप्रिंट चेंज हुआ, ठीक है। The finger region can be divided into subdivided into three categories. Three categories में क्या होता है, अगर 1500 से लेके 1350 में देखा जाए तो here doublet near 1380 to 1365 show the presence of ternary butyl group in the compound. अगर किसी कंपाउंड के अंदर ternary butyl group present है तो आपको ये आपको 1500 से लेके 1350 में मिलेगा। 1350 से लेके 1000 के बीच में all the classes of compound having groups like alcohol esters, lactone acid anhydride show characteristic absorption due to carbon oxygen stretching. अगर 1000 से नीचे देखोगे तो distinguish between cis and the trans alkyne and the mono and the di substitution and the ortho meta para positions of benzene, ओके। तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर अपन फिंगरप्रिंट रीजन को देखें, याद रखना 1500 से लेके 1350, 1350 से लेके 1000 और 1000 से नीचे का। 1500 से लेके 1350 जो होता है वो क्या दिखाता है, टर्नरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, तो आपको वो ऑब्जर्व करेंगे। 1350 to 1000 centimeter inverse will show the functional group like alcohol ester, lactone acid anhydride आपको इस बैंड में मिलेंगे। Below 1000 centimeter में आपको cis and trans जो alkaline group है या mono and di substituted at ortho meta para position of benzene। अगर mono या di मिले हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, दो ग्रुप लगे हुए हो, मतलब कार्बन या क्लोरीन क्लोरीन लगवा दो, ऑर्थो मेटा फ्लोर रहता है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं बेंजीन रिंग्स के वो आपको बिलो 1000 वाले इसमें दिखेंगे।
ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अभी अब ये जो चीजें हैं अपन इसको अभी छोड़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा एक्सेस में है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर जो है उसके बारे में समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी एक एनालिटिकल टेक्निक उठाते हो या इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, इसमें पहला सोर्स ऑफ लाइट आती है, सैंपल रखा जाता है, फिर बाद में उसके बाद में कोई मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर या मोनोक्रोमेटर या कोई स्प्लिटर या कटर कुछ लगा हुआ होता है, फाइनली डिटेक्टर आता है। चार मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अगर सोर्स की बात करें, इसमें लाइट सोर्स या तो नर्स ब्लोअर से आती है, ग्लोबुलर सेल से आता है, या इंडेसेंट वायर सोर्स से आता है, या मरकरी आर्क से आता है। डिटेक्टर के अंदर कौन कौन से डिटेक्टर होते हैं? थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं, थर्मोकपल डिटेक्टर होते हैं, थर्मोफाइल डिटेक्टर होते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं, बोलोमीटर होता है, या पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज इन डिटेल नाउ. So IR radiation source be continuous over the wavelength range used, cover a wide wavelength range, be constant for a longer period of time. फिर बात करते हैं इसमें डिटेक्टर के रेडिएशन सोर्स के अंदर पहला आता है नर्स ब्लोअर। नर्स ब्लोअर क्या होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल होलो रॉड और द ट्यूब हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1 or 2 millimeter and the length of 30 millimeter, sealed by a platinum lead to the end to permit electrical connection. It composed of a mixture of rare earth metals such as zirconium oxide and deuterium oxide and the thorium. इसके अंदर क्या है? नर्स ब्लोअर के अंदर कौन सा एलिमेंट लगे हुए होते हैं? ये अर्थ के रेयर अर्थ मेट ऑक्साइड होते हैं, मतलब जो अर्थ में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसमें जिर्कोनियम ऑक्साइड होता है, या deuterium ऑक्साइड होता है, या थोरिया होता है। they electrically heated to about 2000 centimeter 2000 Celsius. अगर इनमें से रेडिएशन निकालनी, अगर ये क्या है, नर्स ब्लोअर जो होता है एक सिलेंड्रिकल, एक तरह का वही है। अगर आपने गाड़ियों में देखा होगा ना, तो गाड़ियों में किस तरह के वो बल्ब लगे हुए होते हैं, वैसे दिखता है। सिलेंड्रिकल होता है, बड़ा सा रॉड शेप का, और इसके अंदर क्या होता है? प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम से उसको सील किया हुआ होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होती है वो रेयर अर्थ ऑक्साइड मेटल्स की लगी हुई होती है, जिसमें जिर्कोनियम ऑक्साइड, deuterium ऑक्साइड या थोरिया होता है। सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अगर आप इन सारे इलेक्ट्रोड्स को जैसे अगर जिर्कोनियम को अगर 2000 सेल्सियस तक अगर आप हीट करते हो, तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट emitting the IR radiation. ओके, नर्स ब्लोअर कैसा दिखता है अगर देखा जाए? इट प्रोवाइड मैक्सिमम रेडिएशन एट अबाउट 7100 सेंटीमीटर इनवर्स. इट इज अ lifetime its lifetime depend on the operational temperature and the care taken in its handling. तो बहुत महंगा आता है नर्स ब्लोअर बच्चों, क्योंकि इसमें देखो कैसे है यहाँ पर ये ग्लो मतलब अगर ये प्लेटिनम लीड लगी हुई है, ग्लोअर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर प्लेटिनम वायर है जो हीट होता है, और रिफ्लेक्टर होता है जिससे यहाँ से रेडिएशन निकलता है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबुलर सोर्स. ग्लोबुलर सोर्स इज sinister silicon carbide rod, usually about 15 millimeter in length and 5 millimeter in diameter, heated to 2000 centimeter inverse. It provides a maximum radiation of 5200 centimeter inverse. The power consumption is normally higher than that of नर्स ब्लोअर. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इतने टेम्परेचर को 2000 डिग्री तक पहुँचने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है. Globular source water cooling is needed to cool the metallic electrode and attached to the rod. Less convenient to use, more expensive and less intense than that nurse blower. तो ये nurse blower से ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम nurse blower ज़्यादा प्रेफर करते हैं because of less expensive of nurse blower. फिर आता है mercury arc, used for far IR region, that is wavelength less than 200 centimeter inverse. It has a high pressure mercury arc which consists of a quartz jacketed tube containing mercury vapor at a atmospheric pressure less than 1 atm, that is your atmospheric pressure. When current is passed through the lamp, the mercury is vaporized, excited and ionized, forming a plasma discharge at a high pressure. The UV visible region, this lamp emit atomic mercury emission lines that are very narrow and discrete, but limits and intense continuous in the fire region. Then incandescent wire sources, lower intensity IR sources but longer life than the nurse blower or the globular blower. A tightly wounded spiral of nichrome wire is heated to about 1000 Celsius by an electric current. A similar source, the similar source is a
rhodium wire heated sealed in a ceramic cylinder. Incandescent wire sources are long lasting but low intensity than the nurse blower. फिर बात करते हैं मोनोक्रोमेटर्स के ऊपर. ओके, सो मोनोक्रोमेटर में कौन कौन से होते हैं? पहला आता है प्रिज्म, यूज एज अ डिस्पर्सिव एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेरियस मेटल हैलाइड salt. Sodium chloride is the most common prism salt used. These salts are subjected to mechanical and thermal instability and the water solubility. Protecting against damage must be continuous exercised. Then coming to the monochromator, grating होती है. Grating आपको मैंने पहले ही बता रखा है. Advantage of monochromators over the prism that they are made up with material like aluminum which are not attacked by the moisture, used over considerable wavelength range. Now very important topic, sampling. Sampling जो होती है IR की बहुत important होती है. Okay, let me show you some videos on sampling of IR. IR में sampling कैसे की जाती है? इसमें 3 तरह की सैम्पलिंग होती है, जैसे कि सॉलिड के लिए अलग रहेगी, लिक्विड के लिए अलग रहेगी एंड गैस के लिए अलग रहेगी. ठीक है, सैम्पलिंग के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं आईआर के अंदर. सो इट इज एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट टू वॉच इट वेरी केयरफुली. I'm just playing one video for all. Watch it very carefully. It shows the sampling of a solid sample for an IR. So what is very carefully. IR spectrometers, often just called FTIR. The first is a Perkin-Elmer Spectrum 1 FTIR, which we refer to as Spec 1. And the other is a Perkin-Elmer Spectrum 2 FTIR, which we refer to as Spec 2. Each instrument is capable of obtaining information about infrared radiation at all frequencies simultaneously as the radiation is passed through the sample. This diagram shows the basics of how we obtain infrared spectra using an FTIR spectrometer. A beam of infrared radiation is directed into a part of the spectrometer called the interferometer. The interferometer consists of a beam splitter and a pair of mirrors at right angles to each other. This produces what's called an interferogram, which stores information about the IR radiation at all frequencies simultaneously. When the radiation arrives at the sample, some frequencies are absorbed by the sample and some are allowed to pass or be transmitted through the sample. When the transmitted radiation arrives at the detector, information about that radiation is decoded using a mathematical technique called a Fourier transformation. This provides information about the intensity of transmitted infrared radiation at each frequency separately. The computer software then produces a graph of percentage transmission against frequency or wave number. And this graph, called the IR spectrum of the sample, is what the chemist interprets. Here we see a spectrum being collected on one of our FTIRs. We can see that some frequencies are absorbed more than others, depending upon which bonds or functional groups are present in the sample. Spec 1 is equipped with an ATR module, ATR meaning attenuated total reflectance. The ATR is used to obtain spectra of liquid and solid samples, and you can refer to your lab manual for more information on the ATR.
But for now, the ATR consists of a diamond crystal in the center of this circular mounting plate. The liquid or solid sample is placed over the surface of the crystal, and the IR beam is directed from below into the sample to a depth of only 1 to 2 micrometers. SPEC 2 is equipped to obtain spectra via what we call IR transmission. Again, you can read about this in your lab manual. As far as your labs are concerned, you'll use SPEC 2 to obtain IR spectra of liquids only. A very small amount of the liquid is held between two sodium chloride plates within a demountable cell, and the cell is placed in position inside the sample compartment. This allows a sample to be positioned so that the IR beam can be directed towards it. So now let's take a closer look at how we prepare both liquids, solids and IR spectrometry. Lauren here is going to first obtain the IR spectrum of a solid, in this case benzoin, using the ATR on SPEC 1. The computer which controls the IR spectrometer will be switched on and the software, called Spectrum, will be up and running. If it's not, consult your lab supervisor or the lab technician. From here on, it's a fairly simple matter of following the on-screen prompts. Once you've instructed the instrument to obtain the spectrum of a solid, a prompt appears to tell you that the instrument may first request a background scan. If this is needed, the instrument will collect and store an IR spectrum of air. Since your sample is being run in air, in this way the instrument can subtract the spectrum of air from the spectrum of your sample run in air. Generally, the instrument will call for a background spectrum only when software is started up. So if someone else has used the instrument recently, it will use the already stored background spectrum. Just follow the on-screen prompt. Assuming that the background spectrum has already been stored, you will then be prompted to scan your sample. Using a spatula, a small amount of the solid sample is added to the mounting plate so as to cover the exposed surface of the crystal. The pressure arm is swung over the top of the sample and the knob rotated until it just touches the sample. When you click on the scan icon, you should rotate the pressure arm knob again, this time until the force gauge indicates a pressure of between 100 and 130. The force gauge is visible as a green bar at the bottom of the screen, which shows the spectrum being collected. In most cases, the spectrometer will scan the sample 4 times, which takes just a few seconds, and then displays the average result of the 4 scans in the screen. The software displays the spectrum and labels the frequency value for all major peaks. Again, follow the prompts to print a hard copy of the spectrum. While printing is being processed, you'll be prompted to remove your sample and clean the mounting plate and crystal with an alcohol-moistened tissue. And now the spectrum can be collected from the printer. Details about the sample and instrumental parameters can be entered in the tables provided on the hard copy of the spectrum. Scanning a liquid sample with the ATR is very much the same as a solid. First press the liquid scan icon. A few drops of liquid are then placed over the ATR crystal and the pressure arm is rotated so that it just touches the sample. No additional pressure is needed with liquid since there is good contact between the crystal and the liquid, but we still place the pressure arm over the top of the sample in this way so as to prevent or slow down evaporation of more volatile liquids from the surface of the crystal. Everything is the same as that for a solid sample, except no pressure is used with the liquid. The spectrum is obtained and printed out as usual, and cleanup is the same as it is for solids. Use an alcohol-moistened tissue to clean the surface of the crystal and mounting plate. And again, hard copy of the spectrum is obtained from the printer.
Here we see spectrum 2, which you will use only to obtain IR spectra of liquids. Although we could also utilize a solid sampling method with spec 2, it will be used only for collection of liquid spectra. Now, as was the case with spectrum 1, the instrument should be on and the computer software up and running. If this is not the case, see your lab supervisor or the lab technician. For convenience sake, the basic instructions for obtaining a spectrum on this instrument are posted nearby. But first we need to prepare the liquid for spectroscopy. The equipment we need to do this is contained in a desiccator. We use a demountable cell and a set of polished sodium chloride plates. The cell is disassembled and the sodium chloride plates are removed from their container, handling carefully only by the outer edges. One plate is placed inside the cell and a drop of liquid is placed in the center of the plate. The other plate is then placed on top of the liquid and the cell reassembled. So we have a thin film of liquid between the two inner surfaces of the plates. We're now ready to obtain the IR spectrum of the liquid. Now, in most cases, the graph area of the spectrum window will show a spectrum of a sample from a previous user of the instrument. The graph area is cleared. A check is made to ensure that the sample compartment is clear. Then the background icon is selected so that air will be scanned into the background. The instrument then collects a spectrum of the background, which will appear momentarily and then disappear to leave the graph area clear. The demountable cell containing the liquid sample is placed in the sample compartment. The scan icon is selected and the instrument will now collect the spectrum of the liquid sample. In a few seconds, the sample's IR spectrum will appear in the graph area of the screen. And notice that the absorption peaks are not labeled to indicate the position of frequency on the scale. Clicking on the labels icon causes the frequency position of the main spectral bands to be shown. Finally, by selecting the print icon, the spectrum is sent to the printer so that we can obtain a hard copy. The demountable cell is removed from the sample compartment, disassembled, and the sodium chloride plates are cleaned with acetone. Once cleaned, they are wiped dry and returned to the storage container. The pieces of the demountable cell are reassembled and, together with the sodium chloride plates, returned to the desiccator. I hope this video has allowed you to gain some insight into the IR spectrometer and how it's used. Remember that complete instructions on the use of each of our spectrometers, together with instructions on sample preparation, are in section 2. Okay, you have seen this video how the samples are being prepared. So we'll be discussing about the sample preparation in detail in your upcoming classes. Okay, so with that note, I'll wind up the class now here only. If you guys have any doubts regarding today's class, you can ask now. Any doubts? Anybody has any doubt? Because the sample preparation is very important for your examination point of view. So with detail of this sample preparation we'll be seeing in your next class. So with that, I am winding up the class now and see you in next class. Thank you.